Assis, everybody must listen that suppose any topic. If you want to speak English, okay, what to do? कोई भी टॉपिक हम लोग कोई भी छोटा सा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग क्या करेंगे पहले कुछ पॉइंट्स निकालेंगे कि क्या है ये टॉपिक, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में मिनिमम 2-4 पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यूअसली हम लोग को बोलना है। लेकिन बिफोर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन व्हाट यू नीड टू डू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रेजेंट दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक Assis presented very nicely but completed very fast, right? So first of all, few points are there. I am writing here. See, first is stand properly. First point is your standing position. How to stand means very comfortably you stand. Okay, खड़ा भी ऐसा होना है पब्लिक के सामने जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगे कि yes, I am feeling very comfortable here. This place is good, nice. Okay. Then second thing is eye contact. आपका आई कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए, मीन्स आई कॉन्टैक्ट शुड बी इक्वली फॉर एवरीवन। आपका आई कॉन्टैक्ट सभी लोगों को देखता रहे, मीन्स आप ऐसे देखेंगे जैसे कि ये टॉपिक आप समझा रहे हैं तो सभी को जैसे जाए, नॉट ओनली दैट फ्रंट पर्सन, बिकॉज दिस साइड योर राइट साइड लेफ्ट साइड पीपल विल बी देयर। देन हाउ टू प्रेजेंट, अगर ये टॉपिक मुझे सामने वालों को भी बोलना है, इधर भी बोलना है, उधर भी बोलना है, राइट। सो इफ I am explaining this topic, definitely this topic is for everyone, okay, सभी के लिए है, तो I must look, okay, equally to everyone, मतलब सभी को देखना है, otherwise mind exercise will be zero, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका standing position and little bit you move, like if my points are here and here, if I want to go there and I can explain perfectly, why? Because all the audience should see और वॉच प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि आप ना जब भी समझाएंगे ऐसा मत समझाइए, दैट इज और रॉन्ग पोजीशन। ऐसे समझाने से फ्यू पॉइंट्स आर हाइडिंग, है कि नहीं, कुछ पॉइंट्स छूट जा रहा है, इसलिए यू मस्ट टेक दिस पोजीशन और यू टेक दिस पोजीशन। सो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई कॉन्टैक्ट आई सेड, देन नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज मीन्स when you are explaining your points in front of public, you must use your hand. It means hand movement, eye movement, facial expression, everything is there in body language. Not only that, ऐसा कि ऐसा है, in my dear friend, there are many points. Like I'm going to explain about park. These are the parks. Park looks very beautiful. ऐसे अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा? No. That's why what to do or what you need to do, you must use body language. Little bit smile should be there. Otherwise, public will not give you attention. For the attention purpose, you must use my friend. You know these are my topics, and you must understand. If any kind of queries, you can ask me. Like 2 hands workout. Okay, it is working while you explain. After that, you are looking like you are sitting. So many students, you are sitting here, that's why I have to look to everybody. Then, body language over. Next is there that you must pronounce it. Here, pronunciation. Pronunciation is very, very important while explaining your presentation topic. Means, POC is basically for entertainment purpose. Why you know without good, your pronunciation should be perfect. Without good pronunciation, the people or the public will not give you or look at you, or they may not take interest to listen. Okay, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि pronunciation अच्छा है तो जरूर उन लोग का उन लोग इंटरेस्ट लेंगे सुनने के लिए, ठीक है। Any topic, I'm not saying that this topic only, any kind of topic, even when you are meeting with the people, आप अच्छा pronunciation करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये आपका हो गया बॉडी लैंग्वेज, देन बेटर प्रोनाउंसिएशन और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो टॉपिक का टाइम जो है आप 2 मिनट 5 मिनट जो भी लेना है आप लीजिए, बट ज्यादा it means you go for the perfect examples, okay, perfect and useful examples. Then don't
टेक मच टाइम। ओके, ज्यादा टाइम मत लीजिए, दूसरों को बोर लगेगा, तो बोरिंग करने के लिए मत लीजिए, आराम से आइए। यू कैन रिपीट, एंड रिपीटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। रिपीट योर पॉइंट्स, जैसे कि पार्क इज बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। माय डियर फ्रेंड, पार्क इज बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। Here different parks are there like IC Park, Nehru Park, your Deer Park, etc. in our locality. So it is very important that you must go to park, take care of park, and go for relaxation. And sometimes you are getting means you must visit the park because it is very important. And these places are very important for eyes also because greenery environment. So repeat. अगर आप रिपीट करते हो तो दूसरों को भी समझ में आएगा। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम लीजिए, लेकिन हड़बड़ाइए मत। Means one sentence you complete it very nicely or present it very nicely. Understanding? क्या होगा? तो अगर धीरे धीरे आप आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दूसरों को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो डेफिनेटली पब्लिक विल गेट इंटरेस्ट। ओके, वो लोग सुनेंगे बिकॉज दीज आर प्रेजेंटेशन मीन्स दीज आर द पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक। ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर, आपको लास्ट ओनली एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन इसी से कि फर्स्ट आप क्या करेंगे, यू आर स्टैंडिंग प्रॉपरली मीन्स योर पोजीशन, सेकंड इज आई कांटेक्ट, थर्ड इज यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, फोर्थ इज डोंट टेक टू मच टाइम ड्यूरेशन, देन नेक्स्ट इज आवर रिपीटेशन, few points you can repeat also. Okay, pronunciation is there and pronunciation, so these are the point. Last point is there that don't use fake examples or unnecessary topic. It means don't go beyond your topic. Don't go beyond your topic. मतलब क्या है इसका मतलब देखिए, don't use fake examples और unnecessary topic और don't go beyond your topic. इसका मतलब क्या है कि आप अगर पार्क के बारे में कर रहे हैं, आप अगर मोबाइल के बारे में कर रहे हैं, आप अगर राउरकेला सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वही चीज आप यूज करें एग्जाम्पल के तौर पर जो सचमुच है। आप कलेक्ट कीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, प्रिपेयर योरसेल्फ एंड जस्ट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, बट डोंट यूज फेक एग्जाम्पल। व्हाई? unnecessary topic, public will come to know that these are, suppose this place is not in our Raurkela, he is wrong. अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो और अगर नेहरू पार्क की जगह में कोई बोलती कि गांधी पार्क, अब इंदिरा गांधी पार्क इज देयर बट गांधी पार्क इज नॉट देयर। अगर आप बोले कि ये गांधी पार्क है बट राउरकेला में नहीं है, तो पब्लिक दे विल नॉट गिव यू अटेंशन कि ये सही नहीं बोल रहा है। ओके, तो इसीलिए अगर पार्क के बारे में है तो डोंट गो बियॉन्ड द टॉपिक। पार्क के बारे में है तो पार्क के बारे में ही आप बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल कलेक्ट कीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए, लेकिन पार्क के बारे में बोलते बोलते आप स्कूल के बारे में मत बोलिए बिकॉज आवर टॉपिक इज पार्क। हाँ, कुछ रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है कि स्कूल के स्टूडेंट्स लोग भी पार्क आते हैं, मेनी स्कूल्स आर देयर व्हेन पिकनिक पर्पज दे आर आल्सो कमिंग टू द पार्क, ये बता सकते हैं। लेकिन इन एजुकेशन टॉपिक लाएंगे, पार्क का टॉपिक है, तो क्या होगा, पब्लिक विल नॉट टेक इंटरेस्ट, क्योंकि बोलेंगे हम लोग को सुनना क्या है, हम लोग इसी के बारे में सुनना चाहते थे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा, अब वर्ल्ड के बारे में, इंटरनेट के बारे में आप इधर बोलेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा? नो, इट विल नॉट टेक इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई योर टॉपिक, डोंट गो बियॉन्ड योर टॉपिक। ओके, एंड यू यूज सर्टेन एग्जांपल्स दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डोंट यूज अननेसेसरी टॉपिक। कभी कभार इतना हंसी मजाक भी मत करना, मैंने यू शुड नॉट डू दैट, पब्लिक विल फील वेरी बोर्ड because all the people are not same, but common things humorous. Sometimes we also use some kind of related examples that it should be very interesting, but इतना कॉमेडी मत करिए कि ये आप टॉपिक से बाहर हो जाएंगे या तो फिर पब्लिक बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए बिकॉज यू आर लर्निंग एंड यू आर लर्निंग फॉर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर इतना सारा चीज आपका रहेगा, you are following the points like body language, eye contact, pronunciation and proper sentences also, then what will happen? Definitely you will be a good speaker because you are presenting. तो practice के लिए क्या करना है? That is also very important that all these points, yes, you practice
मिरर प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड मिरर प्रैक्टिस, एंड मिरर प्रैक्टिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप अगर खुद पता कर सकते हैं कि यस नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम डूइंग वेल, देन यू कैन फेस द पब्लिक। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर ही रह जाएगा। Understanding? So first you practice by using all these points and come to the public and here. And very important point is there that so many students, so many people, they are thinking that no, मेरा गलती होगा, मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा। It is very wrong ideas. Why you know? गलती होने पर भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा हो ही नहीं रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अगर आप इम्पॉसिबल को देखिए, IMPOSSIBLE सभी लोग बोलते हैं। अगर इम्पॉसिबल कोई भी चीज है, आप देखिए आई और ए को सेपरेट कीजिए, आई एम पॉसिबल, तो ऐसा कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर आई एम पॉसिबल है तो हर चीज आपके द्वारा है, तो इसलिए मिस्टेक होने पर भी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो देन व्हाट विल हैपन, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आफ्टर conversation or any kind of topic, if you are presenting in front of public, तब क्या होगा कि you will feel good because earlier you were not getting interest or you were not speaking, but nowadays you are speaking. थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होने से चलेगा। If you are getting any kind of mistake, you go and correct yourself and you use dictionary, you use mobile phone, Google, everything is there in our hand. But practice is very very important. If you practice in such a way, you practice in such a way that you'll feel very confident. So day by day, if you practice, then automatically you will be a good master in English. Right or wrong? Yes. So nice, understood how to present a topic in English. Okay, how to, lot of things are there. Then next I will tell you what to do. Okay, how can we present our topic?